Hello children, how are you all? So myself Kanupriya ma'am is back with maths. So we are going to start with exercise 16A today. As you all know, we started with 16th chapter, that is parallelogram, and I gave you an introduction part for parallelograms. I taught you about special types of quadrilaterals. I told you about its properties. So I hope you all have written in your notebook and you have read about it and you have understood what is it. And don't worry, for properties, as you do the sums, you will surely understand the properties and you will learn it automatically. You no need to learn it. Okay, when you do the sums, you will have a quick revision. Yes students, so let's start with exercise 16A, that is parallelograms. The very first sum I'll teach you. I'll go at a very normal pace so that you understand well. The first question I will read out for you is, I'm not revising the properties right now, I'll do with the sums only. Okay, with the sums I'll say you once or twice so that you remember the properties. ABCD is a parallelogram in which angle A is 110 degree, that is 110 degree. Find the measure of each of the angles, angle B, angle C and angle D. So for this sum I would like to draw a rough diagram, which is not compulsory for you to draw, but if you draw it will be good for your explanation part. Okay, so a parallelogram I know basically is like this, kind of like this. Yes, fine. And I have a parallelogram ABCD, so I'll name it A, B, C and D. Okay, in which angle A is given 110 degree. So I'll mark it 110 degree. Yes, okay, I have to find out angle B, angle C and angle D. These three angles I have to find out from the given information. So what I am going to do in this kind of sum, I have to use the properties I know about parallelogram. I know this is a parallelogram and I know different properties also for parallelogram. Okay, so now I'll quickly revise the three properties of parallelogram as you must have written in summary part. Opposite sides are equal, means I can mark like this side and this side is equal to each other. Okay, fine. Opposite angles are equal. Fine, means if angle A is 110 degree, angle C will also be 110 degree, and whatever angle B is there, angle D भी वही होगा. Okay, and diagonals bisect each other, which is we are not going to use right now, but as the time comes. So here basically we have to use that opposite angles are equal, because we have to find out angles. So I'll use the property opposite angles are equal. Now I'll tell you how you have to do it. First of all, you will write given angle A equals to 110 degree. Given angle A is 110 degree. So I can say that angle A is equal to angle C equals to 110 degree. Why? Because opposite angles are equal. फाइन, तो अगर एंगल ए 110 डिग्री और एंगल सी, उसकी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल सी भी 110 डिग्री हुआ. फाइन, तो मुझे एंगल सी तो मिल गया. अब क्या बचा? एंगल बी एंड एंगल डी. तो मैं क्या करूंगी, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर आप पेज टर्न करोगे, ठीक है, 190 पेज आप देखोगे टेक्स्ट बुक का, तो उसमें लिखा ही है दैट प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. तो ये मुझे पता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो बाजू बाजू के एंगल है, जैसे एंगल ए और एंगल बी बाजू बाजू में है, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम क्या है? 180 डिग्री. फाइन, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary. See, I am doing it a very slow pace for you so that you understand well. Okay, एक दो सम कम करवाऊंगी मुझे चलेगा, but you should not like it's not कि आपको समझ में नहीं आए. You will surely understand. Fine. अब एंगल A 110 डिग्री है. अब मुझे ढूंढना क्या है? एंगल B 180 डिग्री. तो एंगल B is equal to 180 डिग्री minus 110 डिग्री, that is 70 डिग्री. तो एंगल B क्या हुआ? 70 डिग्री. तो अगर एंगल B 70 है
अगर B मुझे 70 मिला तो एंगल D क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इक्वल्स टू 70 डिग्री. क्यों? अगेन मैं फर्स्ट पॉइंट पे जाऊंगी. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. फाइन. सो फाइनली आई गॉट, देयरफॉर मैं लास्ट में लिख दूंगी एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री. एंगल C मुझे मिला था 110 डिग्री एंड एंगल D मुझे मिला है अगेन 70 डिग्री. फाइनली मुझे ये 3 एंगल्स मिल गए हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. आपको क्या करना है इसमें, अब ये सम क्या, सारे सम्स में यू विल बी डूइंग लाइक यू विल बी यूजिंग ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरालेलोग्राम. सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर. फाइन स्टूडेंट्स, आई होप द फर्स्ट सम इज वेरी मच क्लियर. जो भी प्रॉपर्टीज मैंने यूज किया आई हैव रिटन फॉर यू सो दैट इट्स अ क्विक रिवीजन ऑल्सो. और आप भी लिखना प्रॉपर्टी. जब भी आप करो तो ब्रैकेट में लिखो कि क्यों ऐसा, वाई, गिव द रीजन. ठीक है, सो दैट व्हेन यू राइट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ एंड आई विल ऑल्सो नो कि आपने क्यों ऐसा सम ये किया है. फाइन. सो प्लीज आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ, दैट इज द सेकेंड सम. Just a second. I'll move to the second sum. Please read the second question meanwhile. Just a second, students. Just adjusting it. Yes. Okay. So I'll move to the second sum now. That is. Sorry. Yes, okay. Two adjacent angles of a parallelogram are equal. What is the measure of each of these angles? Okay. Two adjacent, again I'll draw a diagram for you so that you understand well. Mostly I'll use diagrams for this chapter so that you are understanding the sums well. Okay. Two adjacent angles of a parallelogram are equal. फाइन. एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? अगेन आई रिपीट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बाजू बाजू में. सो आई नेम इट. ठीक है, कोई नेम नहीं दे रखा है पर मैं अपने मन से पैरेललोग्राम को नाम दे रही हूँ ए बी सी डी. फाइन. अब एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल तो मैं सपोजिटली कर लेती हूँ कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है क्योंकि ये बाजू बाजू के एंगल्स है. एंगल ए और डी भी बाजू बाजू में है. सो कोई भी मैं ले सकती हूँ. तो मैं ले रही हूँ एंगल ए और एंगल बी इक्वल है. What is the measure of each of these angles? Okay, means ये दोनों इक्वल है और मैं बोल सकती हूँ कि ये और ये भी इक्वल है. Yes? Fine, not an issue. ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये और ये और ये और ये इक्वल है. फाइन. सो आई कैन से दैट गिवन, कोई भी मैं एक ले लेती हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल B. Given angle A is equal to angle B. Fine. So अब मुझे क्या करना है और मुझे पता है सम एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस. और A और B इक्वल भी है. फाइन. सो इक्वल है तो अगर A x है तो B भी क्या होगा? x डिग्री. फाइन, मैंने x ले लिया. सो यहाँ पे क्या हो गया? x डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट. तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपको ईच एंगल्स का मेजर मिल गया 90 डिग्री. बस इतना ही करना था. ओके स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन दी हुई थी आपको ऑलरेडी. आपने एक प्रॉपर्टी यूज करी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगेन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री जो एग्जाम में यूज करते हो वो वाला नहीं बच्चों. सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री. ओके. सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम है 180 डिग्री. फाइन. एंड दिया हुआ था कि दे बोथ आर इक्वल. सो अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है एंड देन आई कैलकुलेटेड दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. Okay students, so I hope it is clear now for you. Okay, fine. चलो. So I hope first and second sum are clear. Third sum भी same है. रेशियो आया. अगर लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो मैंने रेशियो जूम क्लास में आप लोगों को करवाया था. मैंने तब पूछा था कि रेशियो का मतलब कैसे क्या होता है. तो आप सबने मुझे बताया था कि रेशियो कैसे हम लेते हैं. तो यहाँ पे भी अगर रेशियो है तो मैं क्या करूँगी, एक्स ले लूँगी. ओके.
two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. So directly let the angles be 4x and 5x. Okay. Find the measure of each of its angle. Very easy. Again I'll use the same property. ये दोनों adjacent angles है. दे रखा है मुझे क्वेश्चन में कि adjacent angles है. Adjacent angles का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो मैं बोल सकती हूँ 4x plus 5x is equal to 180 degree. Again I'll write in bracket. Adjacent angles are supplementary. Supplementary का मतलब 180 degree. Adjacent angles are supplementary. Fine. So 9x equals to 180 degree. X is equal to 20 degree. Fine. X is equal to 20 degree. Now I'll calculate my angles. ये आपका आंसर नहीं है फाइनल, क्योंकि ये तो आपको x मिला है. अब एंगल्स क्या है? 4x. So 4 into 20 that is 80 degree. 5x 5 into 20 that is 100 degree. हो गया. तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम भी हो गया. 100 प्लस 80 क्या होता है? 180. तो मेरा आंसर इज करेक्ट. फाइन. सो आपको एंगल्स मिल गए 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर. सब में आपको ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज ही है और कुछ नहीं करना है. बहुत इजी है. आपको कोई बोलेगा कि पैरेललोग्राम बहुत टफ है, यार तेरे को नहीं समझ में आएगा, या तू ऑनलाइन कैसे करेगा, प्लीज डोंट पैनिक. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी. अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप अभी तो टेक्स्ट बुक में से करोगे, आप प्रॉपर्टीज देख भी सकते हो पीछे से एक बार रिवाइज करने के लिए. एंड इफ यू सी माई वीडियो, आपको प्रॉपर्टीज भी देखने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग आई एम राइटिंग हियर फॉर यू. यस, सो आई एम वेरी 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 श्योर कि आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो आई एम थिंकिंग टू डू वन मोर सम फॉर यू. फोर्थ सम भी अगेन एडजेसेंट एंगल्स का सम है. सो आई डू फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल. Just a second. Okay. Meanwhile, you please read the question for fourth कि क्या fourth question में क्या दे रखा है आपको. Yes. Okay. fourth question में मुझे दे रखा है कि two adjacent angles. ये तो आप देखना ध्यान से करना है ये वाला सम. ओके. कभी कभी स्टूडेंट्स ये देख के डर जाते हैं, but don't worry, I'm here. I'll teach you. Two adjacent angles of a parallelogram are 3x minus 4 and 3x plus 16. ठीक है. टू एडजेसेंट एंगल्स है. तो हमेशा ध्यान रखना कि एडजेसेंट दे रखा है कि अपोजिट दे रखा है. अगर अपोजिट है तो इक्वल है, एडजेसेंट है तो उनका सम क्या है? 180 डिग्री. ओके. सो टू एडजेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स. ओके. सो मैं लिख देती हूँ गिवन एंगल्स. ठीक है. 3x minus 4 and 3x plus 16. फाइन. 3x minus 4 and 3x plus 16. अब ये एडजेसेंट एंगल्स है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. फाइन. तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इनका सम है 180 डिग्री. वाई? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. देख लो, मैं बार बार आप लोगों के लिए लिख रही हूँ बच्चों कि आपको क्लियर है. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग. फाइन. ओके. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी. नाउ डोंट पैनिक कि कैसे सॉल्व होगा. बहुत इजी है. आई ओपन द ब्रैकेट्स. 3x minus 4 plus 3x plus 16 is equal to 180. फाइन. x और x को साथ में ले लेती हूँ तो 6x. 16 minus 4 क्या होता है बच्चों? प्लस 12 is equal to 180 डिग्री. अब आप क्या कर सकते हो इसमें? या तो आप कॉमन ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें कि मैं यहीं पे कर रही हूँ. ठीक है. 6x is equal to 180 minus 12. आई होप अब ये इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है. 6x equals to 180 minus 12. राइट. ओके. सो 6x is equal to 168. So x is equal to 168 upon 6. तो क्या होगा ये बच्चों? 28 डिग्री. 6 2s are 12 and 6 8s are 48. So x equals to 28 डिग्री. तो अगर x 28 है तो एंगल्स क्या होंगे? आई एम डूइंग हियर, प्लीज लुक. एंगल्स क्या होंगे? 3 into 28 minus 4 डिग्री. अब ये आप सॉल्व करने वाले हो. और 3 into 28 plus 16 डिग्री. दिस विल बी योर एंगल्स.
ओके स्टूडेंट्स, फाइन, बहुत इजी है, आपको एक बार में नहीं हो तो आप दूसरी बार देख सकते हो, इसलिए हम वीडियोस भेजते हैं आपको ताकि यू कैन वॉच अगेन एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वीडियो। ओके, ऑनलाइन लेक्चर तो एक बार कंप्लीट हुआ तो फिर आप सोचोगे क्या बोला था मैम ने क्या नहीं, यहाँ पे आप मेरी आवाज़ बार बार सुन सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आपको क्या करना है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फाइन, सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे, लाइक 4 सम्स आर मोर देन इनफ, अगर आप इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे सो विल मीट अगेन इन नेक्स्ट जूम क्लास। तो जूम क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 5th सम। ओके, नॉट ऑल सम्स वी आर गोइंग टू डू, डोंट पैनिक बाय सीइंग द सम्स, आई टेल यू विच ऑल वी आर गोइंग टू डू। फाइन, सो प्लीज एवरीवन डू वेल, आई होप ऑल 4 सम्स आप अच्छी से प्रैक्टिस करके मुझे बताओगे कि येस मैम हमने कर लिया और हमें बहुत अच्छी से समझ में आया है। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक और आपका आप मुझे बता सकते हो कि येस मैम यू आर करेक्ट, कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट जूम क्लास, अवेटेड, फ्राइडेज अवेटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेट्स सी हाउ एक्साइटेड यू ऑल आर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।